السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. آج ہمارا موضوع ہے اور اس میں جملے کی اب تھوڑی سی کلاس رہے گی. اس کے بعد ہم فعل یا جملے اس طرح انشاءاللہ بنائیں گے. تو چند کلاسیں اہم ہیں اور ہم اس سے پہلے ہر دفعہ آپ کی ایک کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ ختم ہو جائے تو ہم ساری ریپیٹ کریں گے تاکہ اور آپ سے پوچھیں گے, آپ اسے بنائیں گے. اور انشاءاللہ ویسے اس میں ہی بناتے ہیں لیکن یہ باقاعدہ ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو زیادہ تفصیل سے جانے چلیں کیونکہ آج ویسے بھی ہمارے چند ساتھیوں کی طبیعت ناساز ہے تو کوشش کریں گے. اچھا, پہلے تو یہ کہ عربی زبان میں دو قسم کے ہوتے ہیں سوالیہ جملے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس کا جواب جو ہے ہم جملہ پورا کہہ دیتے ہیں. جیسے فرض کیا میں کہوں کہ آپ کا نام حامد ہے تو آپ کہیں گے ہاں. ٹھیک ہے, یہ میں کوئی یہ قلم ہے, یہ جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کہیں گے ہاں قلم ہے. اگر قلم نہیں ہوگا تو کہیں گے نہیں. تو ایک جسے حروف استفہام کہتے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو سوال کرتے ہیں اس میں ایک آ اور حل دو قسم کے جو ہوتے ہیں, دو ہی ہے. حرف استفہام دو ہی ہے. جب ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ جواب جو ہاں یا نہیں نہیں دے سکتے. آپ ہاں کہیں یا نہیں کہیں, جواب بتائیں. تو آ مانے ہوتا کیا ہے, کیا یہ ایسا ہے, کیا یہ ہے, کیا اس میں دونوں آ لگائیں یا حل لگائیں, دونوں آپ کو آپشن ہے. جس میں آسانی لگے اس میں لگائیں. عام طور پہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا آسانی سے استعمال ہو رہا ہو اس جملے میں. دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو جواب ہم ہاں نہیں میں نہیں دے سکتے. جیسے اگر میں کہوں کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ کے ہاں یا نہیں دے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا نام کیا ہے. تو اسے اسماء استفہام کہتے ہیں. اسماء استفہام کہتے ہیں. تو وہ ایک اچھا خاصا ہے. لیکن حروف استفہام کی صرف آ اور حل اور دونوں کے معنی ایک ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو یاد کریں گے تو. اور یہ وہ چیز ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے سوالیہ جملے آتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیا حال ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے, پھر آپ کو ایک اور سوال کریں گے تو جو ڈائلاگ ہے نا تو اس میں آپ کو سمجھنے میں قرآن میں بھی آئے اس طرح کے گانے تو وہ آسانی ہوتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہے یہاں سے حروف استفہام جن کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا. آ مانے کیا, حل مانے کیا, اب مانے بھی ہوتا ہے کیا. لیکن بیٹھے کرسی لے کے بیٹھے. تو جیسے یہاں پہ ہے انکا لانت یوسف, یہ جو ہے سورہ یوسف سے لیا گیا ہے. ان کے بھائی جو ہے پہچان نہیں سکے تھے ان کو, تو جب ان کو انہوں نے جو اچانک ان کو خیال آیا کہ یہ یوسف ہی لگتے ہیں تو ان کو ایک تعجب اور ہے نا ان کو اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر کے اس میں اتنا زور دیا ہے, زور یہ دیا ہے دیکھیے
इन्ना लगाया, आदमी कह सकते थे अंता यूसुफ, अंता यूसुफ ये कह सकते थे अंता यूसुफ, लेकिन उन्होंने यहाँ आ के बाद इन्ना लगाया। क्या तुम वाकई या बेशक तुम और आपको याद होगा कि मुब्तदा और खबर में दरमियान में हम कौन सी ज़मीर लगाते थे? रफ़ाई ज़मीर लगाते थे। तो इसके मुताबिक तो इन्ना का है जो है तो रफ़ाई ज़मीर होगी अंता। इसमें मज़ीद जोर लगाने के लाम ताकीद लगाया है। तो इन्ना का अंता यूसुफ, शायद हम अपनी ज़बान में इतना ताकीद ना कर सकते, लेकिन इंग्लिश में हम ये कहते हैं आर यू रियली यूसुफ, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो या इंडीड आर यू रियली यूसुफ, हमारी दूसरी ज़बानों में इतना ताकीद नहीं होता, इसलिए हम उसको जोर देने के लिए हम ये करते हैं, हमारे पास तो है नहीं। लेकिन इसमें देखिए जोर ये है कि इन्ना लगा के जोर हुआ ताकीदी, ला लगा के जोर हुआ, फिर मुब्तदा और खबर के दरमियान अंता लगा के जो कायदा है कि मजीद जोर पैदा करने को तो उर्दू से भी लिखते हैं क्या? इससे उर्दू मतलब जो आपने ट्रांसलेशन किया है, हाँ, तो वो मैं लिख दूँगा। क्या तुम भी यूसुफ? इससे ज़्यादा हम अपनी ज़बान में नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम जोर नहीं दे सकते। जो जोर यहाँ दिया गया है हम वो जोर पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी ज़बान के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। फिर हल इंदा कुम, इंदा माने होता है पास, इंदा माने क्या होता है? पास। पहले ज़माने नोट पे लिखा होता था इंदल तलब, जब हमारे पास ये पैसा इतना है, इंदल तलब करने पर आपको हम उतने ही रुपये देंगे। अब पता नहीं लिखा होता नहीं कर लिखा होता है, अभी भी लिखा होता है। कहाँ पे? नोट पे और नहीं किया है। गौर करना, नोट पे लिखा होता है कि हम अब शायद नोट पे नहीं लिखा होता। अब हाँ वो इंदा हटा दिया, हाजा कर दिया, हाजा लिखा है। हाजा कर दिया। अच्छा, वो रुपये वापस कर, पहले इंदा लिखा होता था, अब हाजा। आसान उर्दू कर दिया। बहरहाल हल इंदा को, इंदा माने पास, कुम माने तुम लोगों के पास, इंदा माने कुम, कुम क्या हुआ? तुम लोग। हाँ, तुम लोगों के पास मिनल इल्म, यानी कि डू यू हैव एनी नॉलेज, ये समझे, क्या तुम लोगों के पास कुछ कोई knowledge नॉलेज है, इल्म है? ये सूर्य 6 नंबर की सूर्य है, उसका 148 नंबर है, 8 नंबर। फिर ये एक अम का भी होता है कि जैसे अम डू यू होता है, अम हसीब तुम, क्या तुम गुमान करते हो? तुम लोग गुमान करते हो, तुम लोग जो है न तुम मान लो, हम एक तुम कहते हैं, क्या तुम लोग गुमान करते हो? तो ये आ और हल और अम का सूर्य का हाफ में है ना, हम ऐसे है, आम को सूर्य आपने का अलग हाफ। लिखा हुआ है। है आम को आपने अलग लिखा हुआ है। अलग लिखा है इसलिए कि अम का इसका इससे तात और ताल्लुक नहीं है। अम और एक और लफ्ज़ था, वो इस्तेमाल कम होता है, इसलिए मैंने ये सूर्य का हाफ में है ना, हम ऐसे तुम इंदल हम हसीब तुम अन्नमा खलकना। नहीं, सूर्य बकरा में है, का हाफ में भी है। होगा, लेकिन ये सूर्य बकरा की 214 आयत में है। हम नहीं, ऐसे पूरा नहीं तुम लिखता है, इंदल थोड़ा सिर्फ वो सवालिया जो है वो किया है। अच्छा, माँ माने क्या? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं में देते हैं, उसको हरूफी इस्तिफहाम कहते हैं। और जिस सवाल का जवाब हाँ नहीं में नहीं दे सकते, जैसे वो तुम्हारा नाम क्या है, आपके हाँ या नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, तो उसको कहते हैं इस्माए इस्तिफहाम। तो इस्माए इस्तिफहाम में माँ और मादा इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे माँ जो है
اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم کے لیے، اور ماذا جو ہے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے فعل کے لیے. لیکن ایک سوال کیا تھا کسی زمانے میں، یا میں سن رہا تھا کسی سے اور کہتے ہیں کہ ماں انکار کے لیے بھی لگاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا ماں اور آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے انکاریہ جملے میں پڑھا ہوگا، یہاں میں نے لکھا ہوا ہے ماں کے ساتھ جو ہے خبر نکرہ منصوب ہو کے آتی ہے. یاد آیا آپ کو؟ یہ پہچان ہے کہ ماں جو ہے اس میں جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی اور نکرہ میں ہوگی. وہ نکرہ تو ہوتی ہے ویسے منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، یاد ہے کوئی کہ وہ نہیں یاد ہے؟ جیسے احمد کھڑا نہیں ہے، تو احمد ماں احمد قائمن، ماں احمد قائمن پہچان ہے. لیکن اس ماں میں آنے کے بعد کسی بھی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو ماں مانے کیا، ماذا کیا. ماں استعمال کرتے ہیں اسم وغیرہ کے ساتھ، اور ماضی کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں انکار میں. ٹھیک ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے. تو ماں ماذا من کیا، مسم کا نام کیا ہے تمہارا، مسم کا نام کیا ہے تمہارا. ٹھیک ہے. اچھا، ماذا ینفقون کیا خرچ کریں، جو لوگ پوچھتے تھے ماذا ینفقون. ماں اور ماذا جو ہے عام طور پر ایسے اس میں استعمال ہوتا ہے جو بے جان چیز ہے، جیسے ماں آزا میں بوٹ کر کہوں. ٹھیک ہے، آزا صبورا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بے جان چیز اور اس طرح کی چیز جو ہے جو عام طور پہ جاندار چیزوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ہم من کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو وہ ہے کہ عاقل اور غیر عاقل. تو عاقل کے لیے ہم عام طور پر من کرتے ہیں. بلی بھی ہوگی نا تو کہیں گے مال پوچھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے لیے عاقل کے لیے من استعمال کریں. من مانے کون. ٹھیک ہے، من رب کا، من رب کا تمہارا رب کون. ٹھیک ہے، ماں دینوں کا، وہ تو ماں آ جائے گا. ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے. ٹھیک ہے. لیمن جو ہے یہ من سے اس میں لا حروف جار کا لا ہے. لا مانے ہوتے لیے. ٹھیک ہے، من مانے کون، من مانے کون، یہ کس کا، کس لیے، کس لیے. تو کس کے لیے یا کس لیے یا کس کا لیما. وہی لام جو ہے لیمن جب لگے گا تو مجرور نہیں ہوگا. نہیں، یہ ملا کے لفظ بنائے گئے. کیسے لفظ بنائے اس لیے بتایا جا رہا ہے. جیسا آپ نے بولتا نا کہ حروف جار جو ہے پریپوزیشن لگے گی تو یہ وہ حروف نہیں ہے، یہ تو وہ ہے نا سوالی چال. یہ بھی وہی ہے، کیا نام ہے، حروف جار ہی ہے. حروف جار جو ہے یہ ہے. اور من جو ہے یہ مبنی ہے. جب لگائیں گے، جب بھی آپ لگائیں گے تو صرف من ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. لیما لی جو ہے وہی لیے، اور ماں مانے. اچھا، ایک اور چیز کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا، لیما اور لیما اس کا لکھنے میں فرق یہ ہے کہ یہ پوزیٹو ہوگا، یہ انٹروگیٹو ہوگا. یہ جو افرمیٹو لیما جس لیے، اور لیما ہوگا کس لیے. پھر سے دیکھیں لیما کے بعد بات ہو جب آتا ہے. لیما جب، جس لیے. ٹھیک ہے، لیکن لیما جو ہے یہ والا اس کے معنی کس لیے. اس سے پہلے لکھ دینا لیما کا کیا، اور کس لیے لکھ دیں. آپ نے صرف لیما پہ لکھ دیں کس لیے. اچھا، اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں. وہاں پہ ہم نے کیا لیمن،
लिमन मुल्क अल-यौम, सूरह नंबर 40 नंबर सूरह 16 पे है लिमन मुल्क अल-यौम भी है। नाम उनके नीचे ना जेर हो गई लिमन निल मुल्क लिमन मल ऐसे रुक जाएगा इससे, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाएगा। दो जब आ जाते हैं वैसे नहीं पढ़ा जाता, दो सुकून आए हुए, दो सुकून साथ आते हैं तो कभी दोनों एक निमल मुल्कु, निमल मुल्कु, लिमन मुल्क को भी पढ़ सकते हैं। लिमन मुल्क को मीम है, लिमन मुल्क कौन सी सूरत है है, यह है सूरह नंबर 40 और 16वां सूरह, ठीक है। तो लिमन मुल्क को अल-यौम भी आगे, ठीक है। तो आज किसकी बादशाही, whom is the kingdom, किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। आज होता है अल-यौम, अगर लिखा होता आज, वरना लिमन किसकी बादशाहत, ठीक है। ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे, ऐना माने कहाँ, अभी हम ऐना पे पहुंचे नहीं, तो यहाँ तक पहुंचे थे। कैफा माने कैसे या किस तरह, कैफा का माने कैसे या किस तरह। तो कैफा को इस्तेमाल करके देखें, कैफा तकफुरून, हाउ कैन यू कुफर कर सकते, तुम कैसे इनकार, हाँ इनकार कर सकते हैं। कैफा किस तरह, तकफुरून तुम लोग इनकार कर सकते हैं। वहाँ ये तो खैर आप पढ़ेंगे, आपको गुजारे, लेकिन इतना आप क्योंकि कुरान पढ़ते रहते हैं इसलिए हमें पता है कि कैफा तकफुरून, कैसे तुम इनकार करोगे। फिर आया है कम, कम के दो माने होते हैं। कम माने कितने या कितने का, फिर कम होता है तो कितने का, भी लग गया तो उसके माने कितने का, कम नफर। ठीक है, चेक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कम माने कितने, बेकम माने कितने का। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं और सऊदीया गए उम्रे के लिए, आपने कहा बेकम हाजा, ये कितने का है, लेकिन कम लिमनिल मुल्कुल यौम, हाँ हाँ उनके नीचे जेर आएगी। ये मैं यही कह पूरा जुमला नहीं लिखा हो ना, लेकिन वो असल में तरीकेकार ये है कि जब ये है ना मिलाते हैं किसी से तो जेर दे के मिलाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये लिखा तो इसीलिए ये है कि ताकि हमको पता चले कि दूसरा लफ्ज नहीं है। ये जो है लिमनिल मुल्कु, ठीक है, मुल्किल यौम है, हाँ लिमनिल मुल्कुल यौम। मुल्कु, मुल्कुल, मेहमानिल। तो ये हम चाहिए कैफा, कैसे या किस तरह। कैफा कर दिया, कैफा तक ये हमने कर लिया। कम माने कितने, बेकम माने कितने का। अच्छा, कम यहाँ देख लेते हैं हम। कम माने कितने, कम लबिस्ता, हाउ लॉन्ग डू यू अच्छा ये है लबिस्त कम लबिस्त, लिफ्ट। बे के ऊपर ना जेर है नीचे, जबर नहीं होगा। कम कौन लबिस्त, सा, हाँ, लबस्त लिखा हुआ है ना अभी, लबस्त, कम कम लबस्त। लबस्त, ये होगा लबिस्त। ये वाला। बा है ना, बा के नीचे जेर होगा, कम लबिस्त। लाम बीम के नीचे जेर होगा, बे है ना, बे, बे के नीचे जेर है। अच्छा, कम लबिस्ता, हाउ लॉन्ग डू यू लिव, तुम कितने अरसे रहे। ठीक है, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 259। कम लबिस तू तो नहीं होगा, लबिस्त है। लबिस्ता होगा, तुम लोग, तू ना, अच्छा, कम लबिस्ता, तू याद है, ता तू, ठीक है, तू माने तो मैं होगा ना, हाँ, ता माने तू, ती माने
औरत मुअन्नस, ठीक है। अच्छा, अन्ना, अन्ना माने क्यों कर, अन्ना माने क्यों कर, क्यों कर, अन्ना माने क्यों कर क्यों कर, ये याद होना चाहिए। अन्ना माने क्यों कर। आइए देखिए, अन्ना लकी हादा, क्यों कर ये कहाँ से, फ्रॉम वेयर, हाउ या फ्रॉम वेयर। तो ये कह रहे अन्नी लकी हादा, ये किसने कहा था जब आप मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो पहुंचे थे। फ्रूट ये सवारात इमरान का है, सूर्य इमरान है ना, सूर्य 3 है, इमरान का 37 है, ठीक है। और फिर ये अन्ना यकूनु ली वाला, तो उसी उसमें ये है आगे जो है, यकूनु माने होगा या होता है, तो अन्ना यकूनु ली वाला, तो यहाँ क्योंकि फरिश्ते से बात कर रही है और मुस्तकबिल की बात है, इसलिए अन्ना यकूनु ली क्यों कर होगा या कैसे होगा, ली मेरे लिए बेटा वाला, तो ठीक है, सही। क्लियर है, सबके समझ में आ रही है। पढ़े एक दफा समझ गए। अल्लाह यकूनु ली वलद, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो आया आईना, आईना, आईना माने कहाँ, आईना माने आईना कहाँ, शुरका आईना कहाँ, कहाँ है आईना तुम्हारी शरीक? ये कुरान का कहाँ है तुम्हारे शरीक अल्लाह? हाँ, आईना शुरका उकुम, कुम माने तुम लोग, तुम सब, कहाँ है तुम लोगों के शरीक, वेयर आर योर पार्टनर। ये तो शिर्क करने वालों की शिर्क, पार्टनर। अल्लाह की शरीक, पार्टनर से बात है, उनके अल्लाह के पार्टनर बनाया थे। तो सबका कहते थे कि अल्लाह की ये है, ये अल्लाह का ये बनाते हैं, वो देता है, वो रिज़्क़ देता है, वो बारिश देता है, हर के बुत बनाए थे, तो उनको शरीक कहते थे कि अल्लाह के काम में शरीक है, ठीक है, जो शिर्क। अच्छा, फिर कैफा हमने किया था, और कैफा का हमने देख लिया था, कैफा तक फुरून वो तो कम हो गया था, ये तो होगा सारे आगे, अम्मा है ना। अम्मा पे आएंगे ना आगे। अब अम्मा आ गया, किसके बारे अम्मा में? जो है, अम्मा ये तसाल अन माने होता है उसमें हर्फ जर में के बारे में, किसके बारे में? हाँ, अन माने बारे में, जो माँ माने किस, ठीक है, क्या ये किस, तो जब ये दोनों मिलाते हैं तो अम्मा हो जाता है। अच्छा, अम्मा अगर ऐसा होगा अलिफ के साथ तो जिसके बारे में, और अम्मा ऐसे लिखा है, वहाँ अम्मा में ऐसा लिखा है, किसके बारे में? किसके बारे में, और जिसके बारे में होगा तो इस तरह लिखा जाएगा दोनों में, इसलिए दोनों लिखा था कि ये लोग किस चीज़ के बारे में झगड़ रहे हैं? हाँ, तो अम्मा यतसाअलून, यहाँ पे आपने लिखा है इस तरफ लिमा, लिमा जो लिखा है आपने, उसमें लिखा है आपने जिसके, जिस लिए, जिसके लिए, लेकिन यहाँ पे जब आप अम्मा को लिख रहे हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, अलिफ के साथ, वहाँ पे अलिफ के साथ, वहाँ अलिफ के साथ था, लेकिन तरतीब अलग है, ठीक है, ठीक तरतीब की वजह से आपको लगा कि अलग है। तो ये तो हो गया आपके पास, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में आपस में, यतसाअलून आपको पता है, वो हम पढ़ चुके हैं असल में, ये अम्मा ये तसाल हाँ, सूरह बस। मुज़ारे वो के बाद आपको है ना अम्मा, अम्मा पारी की पहली सूरत जो है। हाँ, हाँ, पहले यतसाअलून है, मजीद फी है ये असल में, यतसाअलून आपस में वो करना चाहिए, भाई नहीं ये नहीं है, झगड़ रहे ये लोग झगड़ किस रहे। चीज़ के बारे में झगड़ सवालात करेंगे, नहीं भाई ये नहीं है, तो ये करें किस बारे में, अनिल नबाइल अजीम, तो उस बड़ी खबर के बारे में। अम्मा, तो ये मैंने यहाँ जो लिखा है ताकि आपको पता चले, ये ऐसा है, वहाँ पे अच्छा, अय्याना और मता दोनों के माने कब, अय्याना और मता कब, मता और अय्याना दोनों के माने क्या है, कब, कब। दोनों इस्तेमाल है। अय्याना कुरान में बहुत अहम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और अय्याना जो है ख़ास तौर पे कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अय्याना कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और 6 मरतबा क़यामत के बारे में इस्तेमाल हुआ है। अय्यान मूसा,
इसका क्या मतलब होगा मुसाहद? मुसा कब मराद के क़यामत आएगी। अय्याना मुसाहा फीमा अंदम जिक्रा इला रब्बिका मुनतहा। कुरान की आयत है ये। हाँ हाँ हाँ, तो उसी का बता रहा हूँ कि ये हमेशा जो आएगा अय्याना जो आया वो कोई ख़ास बात के लिए आएगा, ठीक है। तो जब भी आया है वो क़यामत के बारे में आया है, ठीक है। और मता जो आया हर मामले में आते हैं। मता माने क्या है? मता किसी भी मामले में कब? अच्छा मालूम मता जो मता क्या जहाँ, अलग है। कब तुम आए, मता जहाँ, कब आए। हाँ? मता हाज़िर वादो तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हमारा वादा कब पूरा होगा। अच्छा तो मता मता जो जो है- मालूम मता का जो जुमला होता है वो नहीं अलग वो है। आता वो ऐन से मता, मता वो फायदे के बारे में मता, ठीक है। अच्छा तो मता भी हो गया। मिम्मा। मिम्मा, मिन से अब मिन माने से होता है, आपने पढ़ा होगा। मिन माने से। और मिन माँ दोनों को मिला के लिखे किससे। मिम्मा। तो मिम्मा ऐसे लिखेंगे तो किससे, और ऐसे लिखेंगे तो जिससे, वही अलीफ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यही किया है, यहाँ पर भी किया है। मिम्मा जब होगा तो किससे होगा? ये मिम्मा और अलिफ के साथ होगा मिम्मा मिम्मा, में तो जिस होगा ना, जीम से होगा ना, जिससे, जिससे। अच्छा और इससे ठीक है। किससे। नहीं नहीं यहाँ पे तो आपने यूँ लिखा हुआ है ना, देखिए आप देखें अम्मा अभी जो आपने लिखा है आप किसके इसके बारे में? यहाँ पे कहीं लिखा होगा ना, मिम्मा ने मिम्मा यूज किया है, देखिए। मिम्मा खुलका, किस चीज से पैदा किया गया, पैदा किया गया, खुलका पैदा किया गया, पैसिव वॉइस, खुलका, खुलका का फोइला, ठीक है। सही है, मैं समझ गया। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है किस- नीचे, क्या है, नीचे आपने लिखा हुआ अम्मा पे लिखा हुआ है किसके, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे 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 नीचे, हाँ सबसे पहली लाइन। अम्मा किस चीज के बारे में, अच्छा अम्मा और अन से अनमाने बारे में, ये दो से ना, अनमाने बारे मामले किस चीज के बारे में वो आपस में जैसा साल आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर, यहाँ तक सही जा रहा है। फीमा और ये बीमा हो गया हमारा। हाँ। फीमा और फीमा, ये फी माने क्या होता है, इन, फी माने इन में, ठीक है। और माँ माने पैर आ जाएगा। किस या क्या, ठीक है। तो फीमा किस में, हमने लिखा है कोई फीमा, फीमा में इस्तेमाल नहीं किया है। चलो। तो फीमा माने किस में, फीमा माने किस में, फी माने में, माँ माने किस या क्या होता है, किस में, ठीक है। फीमा किस में। तो ये हमारी वो थी जो हमने इसको कोशिश की कि हर वक्त हम इसको कवर करें। मतलब एक ही है किसमें, हैं? अलिफ के साथ भी किसमें और फीमा, वो किससे है, मिन माने से, नहीं नीचे वाला में फीमा, माँ ये वाला माँ है, नहीं दोनों में का मतलब एक का तो किस में हो गया, दूसरे का पूछ रहे हैं। जिसमें होगा ना, जिसमें है या किसमें ही, ये जिसमें, सही। ठीक है। क्लियर, एक दा आप लोग खुद वो करें, पढ़े बोल के हरूफ इस्तिफाम जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके। कौन कौन से, अलिफ हल अम। आ और हल आता है, उसको मैंने अलग से इस्तेमाल किया। आ और हल दो वो है। तो आ जब जवाब होगा तो आ के जैसे आ इन्नकल अंतर, या आ अंता, या आ हाजा पेन, क्या ये पेन? कलमुन। इसमें ये देखिए हमने हाजा पेन तो कह दिया, फिर पूछा क्या, आ हाजा पेन, आप कहेंगे हाँ या कहेंगे नहीं। तो हाँ को कहते हैं नाम, और ला, बताइए आपको
ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہاں کہنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم. نعم. هذا پین؟ نعم. هذا کتاب؟ نعم. هذا کتاب؟ لا. لا. هل هذا کتاب؟ لا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہو گیا. اب آئیے ماں اور وہ جو ہے جس سے ہم ہاں نہیں میں جواب نہیں دے سکتے. جیسے کیا یہ پین ہے؟ ہاں نہیں کہہ سکتے آپ یا نہیں کہہ سکتے. آپ بتانا پڑے گا یہ قلم ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے جملے جو ہیں ان کو اسم الاستفہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم الاستفہام کہتے ہیں. ماں مانے کیا، ماذا مانے کیا، دونوں کے معنی کیا ہے. اب یہ دونوں پر کیوں لکھتے ہیں؟ ماں عام طور پر اسمیہ جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماذا جو ہے فعلیہ جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماذا ینفقون. ٹھیک ہے. ہم کیا خرچ کریں؟ من مانے ہوتا کون، اور ماں اور ماذا جو ہے عام طور پر غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے ماں جو ہے، اور من جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عاقل اور غیر عاقل کی آپ لوگ پاس توجیہ موجود ہے. تو من مانے کون، من ربوں کا، رب کون؟ من رسول کا. رسول کون؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ من استعمال ہے. اور ماں کا بہت سارے ہیں. ماں دینوں کا کیا معنی ہوئے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے. یہ تو سوال خبر کے اس لیے یاد ہونا چاہیے. لیمن مانے کس کا. لیمن یہاں دیا ہم نے کیا تھا لیمن ملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمن ملک الیوم. تو ابھی تو آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں نا، وہاں کسی کوئی چیز نہیں چلے گی. یہاں تک کہ ہماری زبان بھی خاموش ہوگی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گی. ٹھیک ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے جو مجھے میں سمجھتا ہوں کر لینی چاہیے. ایک چیز ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبر آئے اس نے جو ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا دیا ہے؟ آخرت. جو بھی آئے کہ آخری دنیا ختم ہوگی اور پھر سے کیا جائے گا. جو بھی آئے. اور وہ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا. ہمارے میں آج بھی ہم کہتے ہیں آخرت یقین ہے، لیکن آخرت یقین حقیقتاً اپنے دل سے پوچھے ہے یا نہیں. تو آخرت کا ہر کوئی پیغام لے کے آئے آخرت. پھر آخرت کے بارے میں جو فضیلت بیان کی ہے کہ آپ کے اچھے اعمال ہوں گے وہاں. یہاں تو اللہ کی وہ من ہے نا کہ آج آپ زلزلہ آ گیا، آج یہ آ گیا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں غلط ہو گیا، آپ نے کوشش کی بزنس کے لیے ناکام ہو گئے، آپ نے کوئی اچھی شادی کرنے کی کوشش کی پتہ چلا کہ انکار ہو گیا. ہر جگہ آپ کو رکاوٹیں دیکھتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی بڑی وہ ہے، وہاں آپ کی مرضی چلے گی سوائے انصاف کے علاوہ. انصاف سے آپ نہیں سکتے. وہ جو آپ کہیں گے کہ میں نا ایسا کر لوں، میرے پاس یہ ہو جائے، پہاڑ کھڑ جائے، پہاڑ ہو جائے سونے کا، آپ کی مرضی چل رہی ہے. لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے ایسی جس کو معاف نہ ہونے والی، اس کو کہیں اس کو معاف کر دیں. انصاف کے علاوہ، فیصلے کے علاوہ آپ سب کچھ کیجیے. بہت سے لوگوں نے سوال یہ بھی کیا کہ بھائی کیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماں باپ آ جائیں. تو ماں باپ کو اگر ایسے جرم میں تھے تو کیسے ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے آپ کی تمنا پوری کی جائے گی. اس قسم کا نہ لا کے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کے لیے بہت والدین کے درجات کم ہیں اور آپ کا درجہ زیادہ ہے. ہاں تو آپ فار ایگزامپل آپ کے والدین کا درجہ زیادہ ہے اور آپ کا کام ہے، تو ان کو جو بہتر ہوگا نا اصل میں وہ جو ہے وہ اس میں کہ کوئی بڑا جرم نہ ہو، شرک نہ ہو. اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہاں جو ہے وہ معاملات اگر دیکھا جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو نا اگر باپ ہے تو اس کا بیٹا چلا گیا، شوہر ہے تو بیوی چلی گئی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، چچا
भतीजा, ये मामला भी है, मतलब किसी का नहीं इंसाफ तो है। आप एक माँ बाप के 4 बच्चे तो जरूरी नहीं है चारों जन्नत में जाए, तो बहरहाल ये कि या वो बाप जन्नत में जाए और बच्चे नहीं जाए। बाकी आपकी सारी आप क्या दूध की नहर बैठे, दूध की नहर बैठे, और जन्नत इतनी बड़ी है कि आप अपनी सोचेंगे नहीं क्या करें। आपको ना सब चीज लाओगे, सोना और अल्लाह ताला इस चीज़ से भी निकालेंगे दिल से ये बात। चलिए बहरहाल ये असल में टॉपिक बात कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो कहाँ तक पहुँचे थे? लिमा तक हो गया ना, जमा हो गया। कैफा कैसे, किस तरह, कैफा हाल का, जब अरबी सीखना शुरू करते हैं क्या कहते हैं? कैफा हाल का, क्या हाल है? अना बखैर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कम, कितने, कम फलूस, कम फलूस, तुम्हारे पास कितने तो नहीं। कम नफर। अगर आपको पूछना है ये कितने का, ये चीज़ जो है, ये कलम कितने का, तो बेकम हाजा कलम, ये कलम कितने का है, इसीलिए बात। अन्ना माने क्यों करिए, कहाँ से अन्ना? अच्छा, हमने एक अय्ये वाला नहीं किया। क्या नहीं किया? अय्या वाला। अय्या माने अय्या लिखा कौन हुआ सा? आपने? लिखा हुआ नहीं, भूल गए। ये लिख दीजिए, अहम है तुम। अय्यो का जो है ये मबनी नहीं है, ये मुनसरिफ है। मुनसरिफ में जाना, आप मुनसरिफ तीनों हालतों में अपनी शक्ल चेंज करता है। अय्यो जो है मुनसरिफ है, बाकी सब तो मबनी है ना, ये मुनसरिफ है। तो जब आप देखें अय्यो माने कौन सा, कौन सा या कौन सी, फा बी, फा माने बस या फिर या तो, बे माने सात। हर्फ जारा, बे साथ। लेकिन ये बे जब इसके साथ आएगा तो उस पर जोर हो जाएगा। कौन सी, बे लगाने से जोर पैदा होता है। एक बार कौन सी है माने तो कौन सी है, लेकिन ये बे लगाने के आपको 2 दफा कहेंगे तब जोर है। तो फा पस तुम कौन सी आलाए नेमतों को, आलाए नेमतों को, रब्बुकुमा तुम लोग के रब की, तुम लोग के रब की कौन सी नेमतों को, जुटलाओगे। तकज़्ज़ुबान, तुम दोनों झुटलाओगे। आनी किस और तुकज़्ज़िबान है, कहाँ पे पेश होगा और तुकज़्ज़िबानी, काफ पे जबर हो, हो जाएगा। काफ पे जो है ना जबर हो कहाँ जाए। पे जबर है? तू के बाद देखें, ते के बाद देखें। हाँ तो देख लीजिए क्या कर नहीं सही हाँ, है, तू कज़्ज़िबान है। तुकज़्ज़िबान है। तो कल मुंह से निकल रहा तो कल जबानी देख के लिखता हूँ, इसलिए मैं वो होता है ना, देख लेना यार, नहीं यही है, ये तो अंडरस्टैंड, कज़्ज़िबान। मुंह से वही निकल रहा तो कल जबानी लिख लिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो तुम लोग बस कौन अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम दोनों जुड़ गई है, दोनों में कौन है? जिन और जिन और इंसान। इंसान। अच्छा, फिर यहाँ हो गया हमने कहाँ से बोलते हैं अन्ना माने के ऊपर कहाँ से, अन्ना लकी आजा, ये हमने किया होता है। और अन्ना ये कूनू लियो तुम्हारे, यानी कि ली माने मेरे लिए, मुझसे यानी कैसे लड़का होगा, क्योंकि मुझे तो किसी बशर ने भी नहीं छुआ। उनका ये था, मुझे तो किसी बशर ने भी नहीं छुआ, तो किस बार लड़का होगा? वो फरिश्ते से कहा।
अच्छा फिर ये कहा गया अम्मा क्या ऐना ऐना मैंने कहा से ऐना मफर आप पढ़ते हैं जो ऐनल मफर हाँ ऐना मफर्रा सूरत पढ़ते हैं ना ये, पढ़ते हैं ना। मफर के माने क्या है? फरेब तो नहीं। फे रा रा क्या वो आवाज आती है किसी ऐनल मफर फरार 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 मफरर फरार की जगह, ठीक है क्लियर है ना। फरार की जगह कहाँ है? जब गुस्सा होगा ना तो हर आदमी चाहेगा कि कहीं भागी। छुप जाए, कहीं ऐसे जगह चला जाए इस हिसाब से बच सके, तो ऐना मफर। अच्छा कहाँ आ गया? अम्मा अम्मा या तसलून हमने कर दिया है। किस चीज़ के बारे में लोग सवाल कर रहे होंगे, एक दूसरे से भी कहेंगे आप, ठीक है। अयाना और मता दोनों में फ़र्क आपको पता चल गया। अयाना ख़ास चीज़ को, स्पेशल चीज़ के लिए हम करते हैं, और मता माने हर चीज़ में कब। मिम्मा किससे, ठीक है। तो मिम्मा खोले को किस चीज़ से पैदा किया गया। अच्छा फिर फीमा किस चीज़ में, याद आ रहा है कोई आयत ऐसी फीमा की? जल्दी लिखो। किस चीज़ में? फीमा अंत मिन ज़िक्रा इला रब्बिका मुंतहा। मैं असल में मैं हाफिज़ लोगों से कहता हूँ कि भाई वो पढ़े। ये एक जो हाफिज़ है ना, वो अगर ग्रामर की क्लास अटेंड करे तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए कि वो हर चीज़ को में जाता है। हमारे साथ ये होता है कि अगर हमने ये किया तो इसमें जब तक डाउट रहता है, तो आप तौर पे जब लिख दिया जाए ना तो उसकी अथेंटिक हो जाए। मैंने कल देखी, मैंने एक बड़ी गलती की, क्या कि अल लगा के मैंने 2 पेज लगाया हुआ था और किसी ने मुझे टोका भी नहीं। अल लगा के जैसे अल किताबू होना चाहिए, मैंने अल किताबू लिखा, किताबुन लिख दिया, तो किसी ने कहा भी नहीं कि सर आप ये देखें आपको क्या करना है। नसब में जाता है ना। कभी भी नहीं होगा। अल लगेगा तो प्रिंट होना, तब भी आप मिटा दें उसको कि गलत है। अल के साथ कभी तनवीन नहीं लगती, ये होती है गलती, ये आखिर तक गलती होती रहती है, ठीक है। जब जल्दी में आप लिख रहे होंगे तो आप गलती करें, ठीक है। तो हमारे आज ख़त्म करते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अब हम दूसरी क्लास करेंगे, उस वक्त हम अपनी कोशिश करेंगे कि रफ़ी ज़मीर, एक आदमी रफ़ी ज़मीर बोले तो दूसरा ना नस्बी और जरी ज़मीर बोले, ताकि आपको दोनों को पकड़े। जैसे इस्तिला हुआ तो दूसरा बोलेगा अटैच टू, हुमा अटैच हुमा, हुम अटैच हुम, हिया अटैच हा, हुमा अटैच हुमा, उन्ना अटैच उन्ना। जैसे अंता आया तो अटैच का, अंतुमा अटैच कुमा, अंतुम अटैच कुम, अंती अटैच की, अटैच तमा अटैच कुमा, अंतुना अटैच कुन्ना, और अना अटैच ई, और नहनो अटैच ना। ये दोनों इस तरह पढ़ेंगे, एक इसका और एक इसका, ताकि ये कि जब भी हमें जैसे फर्ज क्या इन्ना अंता आया, अंता है उससे पहले इन्ना आ गया तो क्या बनेगा? इन्ना क्या? इन्ना का, इन्ना इन्ना का है, ठीक है। जैसे अंतुम है, अंतुम से पहले इन्ना आ गया तो इन्ना कुम हो जाएगा, अटैच होके आएगा, लेकिन इन्ना और कुम मिलावा मिला के लिखेंगे, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम